Okay, dear students, let us see exercise 4.3 from linear equations in two variables. So let us see first question. बच्चों. Draw the graph of each of the following linear equations in two variables. पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. x plus y is equal to 4. तो यहाँ पर हम लोग x लेंगे, y, x कॉमा y. तो x की वैल्यू 0 लेंगे बच्चों, या 0 रखेंगे. 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो y इज इक्वल टू 4 आएगा. 0 प्लस y मीन्स y. तो दिस इज 4, 0 कॉमा. टेक y इज इक्वल टू 0 बच्चों. यहाँ 0 रखेंगे. x प्लस 0, 0. x प्लस 0 मीन्स x. तो x इज इक्वल टू 4 आएगा. इफ वी टेक बच्चों यहाँ x इज इक्वल टू 2, देन y is equal to 2 आएगा बच्चों. यहाँ 2 plus y is equal to 4, then y is equal to 4 minus 2, ये 2 आएगा. So this will be 2 comma 2. ठीक है. So let us plot these points बच्चों. पहला पॉइंट हमारा 0 comma 4 यहाँ है. दूसरा पॉइंट क्या है? 4 comma 0. और तीसरा पॉइंट जो है ये 2 comma 2. इसमें से हम लोग क्या करेंगे? लाइन प्लॉट करेंगे. So this is the equation of x plus y is equal to 4. चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. तो x माइनस y is equal to 2 है. तो टेक x is equal to 0 बच्चों. तो 0 माइनस y is equal to 2, माइनस y is equal to 2, y is equal to minus 2 आएगा. 0 कॉमा माइनस 1. ठीक है. If we take here y is equal to 0 ले लेंगे. x minus 0 is equal to 2, तो x is equal to 2 आएगा. 2 comma 0. ठीक है. Now you can take any value of x बच्चों. Take x is equal to या y is equal to 1 लेते हैं. x minus 1 is equal to 2, x is equal to 2 plus 1, x is equal to 3 आएगा. तो 3 comma 1. ठीक है. चलिए बच्चों पहला पॉइंट रखते 0 comma minus 2. 0 comma minus 2 यहाँ आएगा. 0 comma, अभी देखिए दिस इज 2 comma 0. तो ये 2 comma 0 यहाँ आएगा. 3 comma 1, ये 3 और ये 1. तो यहाँ से एक लाइन प्लॉट करेंगे बच्चों. दिस इज द इक्वेशन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आएगा. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. y इज इक्वल टू 3x. अगेन यहाँ पे x, y, x कॉमा y. टेक x इज इक्वल टू 0 बच्चों. तो पुट हियर 3 into 0, so y is equal to 0 आएगा. So this is 0 comma 0 आएगा. If I take here x is equal to 1 बच्चों, y is equal to 3 into 1, y is equal to 3. So 1 comma 3. Take here x is equal to minus 1 लेते हैं. So 3 into minus 1, this is minus 3. Minus 1 comma minus 3. So let us plot these points. यहाँ 0 comma 0 आएगा बच्चों. 1 comma 3 यहाँ पे आएगा. माइनस 1 कॉमा माइनस 3 यहाँ पे. तो यहाँ से जाने वाली लाइन निकालेंगे बच्चों. दिस इज y इज इक्वल टू 3x आएगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. दिस इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है बच्चों. x, y, टेक x इज इक्वल टू 0. 2 into 0 plus y is equal to 3. Then 0 plus y is equal to 3. y is equal to 3 आएगा. 0 3 आएगा. ठीक है. Let us take y is equal to 0 लेंगे. 2x plus 0 is equal to 3. 2x is equal to 3. x is equal to 3 by 2.
means 1.5 comma 0. 3/2 means 1.5. Again, what we will do? Let us take here bachcho x is equal to 1 ले लीजिए बच्चों. Put x is equal to 1. So 2 into 1 plus y is equal to 3. 2 plus y is equal to 3. Y is equal to 3 minus 2. Y is equal to 1. 1 comma. So 0 comma 3. 0 comma 3 यहाँ पर 1.5 comma 0 यहाँ पे 1.5 comma 0. इसके बाद में 1 comma 1 यहाँ आएगा बच्चों. So let us plot line बच्चों. तो यहाँ से ये जो लाइन है, so this is 3 is equal to 2x plus y आएगा. So this is the equation of fourth line. So let us see question number 2 बच्चों. इसमें क्या दिया है देखते हैं. Give the equation of two lines passing through 2, 4. देखिए बच्चों, हम लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 4. सो यू कैन राइट इनफाइनाइटली मेनी क्वेश्चंस बच्चों. तो ये पहला इक्वेशन मैं बताता हूँ. x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 14 28. दोनों का डिफरेंस ले लीजिए. x माइनस वाई इज इक्वल टू -12. तो ऐसा हम लोग इक्वेशंस लिख सकते हैं बच्चों, या फिर इसको x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0. x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ठीक है. So you can write infinitely many questions बच्चों passing through equations passing through 2, 14. So question number 3 देखिए बच्चों. If the point 3, 4 lies on the graph of this 3y is equal to ax plus 7. So this point lies on this line, means this equation satisfies this point. That means put x is equal to 3, y is equal to 4. So 3 into 4 is equal to a into 3 plus 7. 12 is equal to 3a plus 7. 12 minus 7 is equal to 3a. IU is equal to 3a. IU upon 3 is equal to a. Next question देखते हैं बच्चों. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer. Distance covered x kilometer है बच्चों. And total fare ₹5 पर किलोमीटर. 1 किलोमीटर को 5 रुपए. तो देखिए बच्चों, इसको समझ लीजिए कि टोटल डिस्टेंस कितना है. देखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर है, बराबर है. सपोज दिस इज ये भी यहां से यहां तक क्या है, x किलोमीटर डिस्टेंस है. इसमें इन्होंने क्या दिया है बच्चों कि यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर के लिए, वो दिस इज यहाँ पे 1 किलोमीटर पे सी पॉइंट है, ये 1 किलोमीटर है. इसको 8 रुपए लगेंगे. बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों x माइनस 1. पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए देना है और रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए 5 रुपए पर किलोमीटर. दैट मीन्स 5 इन ब्रैकेट x माइनस 1. ऐसा इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल फेयर y बोलेंगे. y इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज प्लस बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस x माइनस 1 5 रुपीज पर किलोमीटर से हो जाएगा. वी कैन सिंप्लीफाई दिस बच्चों. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5. तो ये क्या हो जाएगा,
y is equal to 5x plus 3, 8 minus 5 means plus 3, 5x minus y plus 3 is equal to 0. So let us see question number 5. यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6. तो यहाँ में हम लोगों को देखना है कि ये जो ग्राफ है, ये लाइन का ग्राफ, इसमें से कौन से वो दो लाइन, कौन से लाइन का इक्वेशन है, ये 4 इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन है, ये हमको बताना है. तो ये कैसे चेक करेंगे बच्चों? इसमें के कोई भी 2 पॉइंट्स जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इक्वेशन हो जाएगा. देखिए बच्चों, यहाँ y इज इक्वल टू x मीन्स दोनों x और y कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए. तो या -1 है या 1 है, सेम नहीं है, ये कैंसिल है. अब दूसरा क्या है, देखिए बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. दोनों को ऐड करेंगे तो 0, -1 प्लस 1 0, एक पॉइंट आ गया. दूसरा भी आना चाहिए, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस -1 0. दैट मीन्स ये हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है. ये y इज इक्वल टू 2x मीन्स y जो है वो x के डबल है, तो यहाँ है नहीं है कहीं पर भी. सो देयरफॉर आवर आंसर विल बी सेकेंड. अब इसमें देखते हैं बच्चों कि यहाँ देखते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 2. बोले तो x में 2 ऐड करेंगे तो y आना चाहिए. इसमें 2 ऐड कीजिए, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 मीन्स 1 आएगा, नहीं आएगा. दैट मीन्स ये इक्वेशन नहीं. देखिए बच्चों, या x -2 करेंगे तो y आना चाहिए. तो यहाँ पे 3 है बच्चों y. ठीक है. x की वैल्यू यहाँ रखिए, -1 -2, -3 आ रहा है, +3 नहीं आ रहा है. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वेशन. अब देखते हैं बच्चों तीसरा है. ठीक है. अभी इसका देखिए, y is equal to -x plus 2 मीन्स x plus y is equal to 2 आना चाहिए. ये दोनों को ऐड कर दीजिए बच्चों, -1 plus 3 2 आता है. ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 plus 2 2 आता है. ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 आता है. दैट मीन्स our answer is this. बच्चों, let us see one more question बच्चों, important question. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. तो वर्क डन जो है बच्चों, वर्क डन बोलेंगे हम लोग, वर्क डन y, और उसके बाद में डिस्टेंस ट्रेवल्ड x है. y is proportional to x दिया है. देखिए, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation. तो देखिए, यहाँ पर हमने वर्क डन y लिया है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x. तो y is equal to kx. को मीन्स k को कांस्टेंट फोर्स बोलेंगे बच्चों. तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स. ये कांस्टेंट फोर्स जो है 5 यूनिट्स. तो y इज इक्वल टू 5x बोल सकते हैं हम. ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन when the distance traveled by body is 2. Distance is 2, then what is work done? ये देखना है. Distance is 0, then what is x? Means देखिए बच्चों, distance is 2 units means x is equal to 2. What is value of y? Distance is 0 means x is equal to 0, then what is y? So let us plot this graph बच्चों. इसको पहले प्लॉट करेंगे हम लोग. तो यहाँ पे x बोलेंगे, y, x कॉमा y. तो टेक x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे 5 इंटू 0 मीन्स 0, तो 0 कॉमा 0 आएगा. फिर देखिए बच्चों, इसको हम लोग x इज इक्वल टू 1 लेंगे.
x इज इक्वल टू 1, तो 5 इंटू 1 मीन्स 5 आएगा, 1,5। x इज इक्वल टू -1 ले लीजिए बच्चों, तो 5 इंटू -1 माइनस, तो यहाँ पर ये 0,0 है बच्चों, 1,5, 1,5 यहाँ पे है, फिर -1,5। देखिए बच्चों यहाँ से ये प्लॉट लाइन प्लॉट करेंगे हम लोग, तो दिस इज द इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, व्हेन रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से हम लोगों को यहाँ पर 2 है, x कोऑर्डिनेट इज 2, देन y कोऑर्डिनेट इज 10 आता है बच्चों। इधर यहाँ पे हमारा ग्राफ थोड़ा छोटा है, तो इसका आंसर क्या है, मैंने x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 10 आएगा। यहाँ पर भी वैल्यू रख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 है तो y कोऑर्डिनेट भी 0 है, दैट मीन्स when x is equal to 0, then here y is equal to 0 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यामिनी एंड फातिमा, 2 students of class 9th of a school together contributed 100 rupees towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies the data. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन यहाँ तो दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यामिनी का कंट्रीब्यूशन, यामिनी कंट्रीब्यूशन रुपीज एक्स, और फातिमा, फातिमा का कंट्रीब्यूशन बच्चों रुपीज वाई। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन टुगेदर कितना है, 100 रुपीज, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे x y और यहाँ x कॉमा वाई, ठीक है। तो यहाँ लेट अस टेक x इज इक्वल टू 50 है, तो y इज इक्वल टू 50 आएगा, 50 कॉमा 50। x इज इक्वल टू 30, तो y इज इक्वल टू 70 आएगा, 30 कॉमा 70। x इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 60, 40 कॉमा 60। तो यहाँ पर हम लोग से स्केल कैसा लेंगे बच्चों, 1 मीन्स 10 बोलेंगे, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 बोलेंगे, 10 रुपीज। तो 50 कॉमा 50, तो यहाँ पे ये 5 मीन्स 50 कॉमा 50 यहाँ है, राइट। उसके बाद में 30 कॉमा 70, 30 कॉमा 70 यहाँ आएगा, 40 कॉमा 60, 40 कॉमा 60 यहाँ है, राइट। इसमें से जाने वाली लाइन, ड्रा द ग्राफ ऑफ लाइन ऐसा बोला है, तो दिस इज द लाइन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, where in the countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. तो Fahrenheit to Celsius convert करने का ये फार्मूला है बच्चों। तो draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis, Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis। तो C मीन्स x है बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। तो f मीन्स y इज इक्वल टू 32 आएगा, तो x कॉमा y 0 कॉमा 32। तो और एक पॉइंट लेंगे बच्चों, x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 5 लेंगे बच्चों। लेट अस टेक x इज इक्वल टू 5, तो 5 विल गेट कैंसल और ये 39 आएगा, मीन्स 5 विल गेट 9 प्लस 32 41 आएगा, 41, 5 कॉमा 41 आएगा। इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं बच्चों, देखिए कैसे प्लॉट करेंगे, 0 कॉमा 32, 0
30 और इसके आगे थोड़ा सा आएगा 32 ना, यहाँ आएगा। दूसरा 5,41, 5,41 इधर आएगा कहीं तो भी, राइट। इसमें से जाने वाली लाइन हम लोग निकाल सकते हैं। तो दिस इज ग्राफ योर बच्चों। अब इसके बाद में के क्वेश्चंस देखिए बच्चों। ड्रॉ द ग्राफ, ये तो हो गया। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट? सो एफ इज इक्वल टू 9/5। देखिए बच्चों, ये रखिए 30 प्लस 32, तो 5 1 5 6 30, 54 प्लस 32 6 और यहाँ 8 आएगा, तो दिस विल बी 86 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द टेम्परेचर इज 95, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? तो फारेनहाइट में दिया, एफ के बदले में 95 रखिए। 95 इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। So 95 minus 32 is equal to 9/5c, 3 6 is equal to 9/5c। तो c is equal to, देखिए बच्चों क्या आएगा, 63 into 5/9, तो दिस इज 35। इसका 35 आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? देखिए बच्चों, अगर समझो टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 0, 9/5 into 0 plus 32, so F is equal to 32 आएगा Fahrenheit में, मीन्स। और when F is equal to 0, तब सेल्सियस में क्या टेम्परेचर आता है ये देखना है। F is equal to 0, यहाँ 0 रखिए, 0 is equal to 9/5c प्लस 32। तो ये 32 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, -32 इज इक्वल टू 9/5c, तो c इज इक्वल टू -32 इंटू 5/9 आएगा। c इज इक्वल टू, तो c इज इक्वल टू दिस आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। Is there a temperature which is numerically same in both Fahrenheit and Celsius? तो यहाँ पे दोनों टेम्परेचर कब सेम रहेंगे? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों? लेट अस पुट F इज इक्वल टू C इज इक्वल टू X। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? X माइनस 9/5 X इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 5x minus 9x/5 is equal to 3. So 5x minus 9x means minus 4x/5 is equal to 3. So x is equal to 5 into 3 minus 4. So x is equal to 15/4 minus. So f is equal to c is equal to minus 15/4 आएगा। तो ये दिस इज इसका आंसर है।